Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. So, good evening to all. I hope I am audible to you. Today we will see the questions from your pharmacognosy, remaining questions from glycosides, and we will take a MCQs from tannin part. So again, good evening to all. Please share this link with your friends. Good evening to all. Good evening. Good evening. Good evening. I hope I am audible to you. Today we are going to see the MCQs from pharmacognosy part, remaining questions from pharmacognosy and tannin part. So please share this link with your friends so that they will get benefit from this session. चलो आ जाओ सभी, लाइव आ जाओ. Again we are going to take 40 questions, very important MCQs for your upcoming GPAT Niper DI Pharmacist exam. So question number 41, which kind of saponin is used to synthesize steroids? देखो क्वेश्चन पूछा है which kind of saponin is used to synthesize the steroids. देखो saponin used to synthesize the steroids. कौन से saponins synthesize के लिए इंटरमीडिएट बनाते हैं? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड saponins, ऑप्शन बी पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड saponins, ऑप्शन सी हेक्सासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड saponins, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. So important questions for upcoming GPAT Niper DI Pharmacist. Which kind of saponin is used to synthesize the steroids? क्या synthesize करना है भाई? Steroids. Option A tetracyclic triterpenoid saponin, option B pentacyclic triterpenoid saponin, option C hexacyclic triterpenoid saponin, option D none of the above. दोस्तों याद देखो, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड saponin. A tetracyclic triterpenoid saponin that is used as a starting material or raw material for the synthesis of steroids. So example diogenin. So a tetracyclic triterpenoid saponin. का आंसर क्या रहेगा? टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनॉइड saponin. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. Which alkaloid is present in the diascoria? ऑप्शन ए डायोजेनिन, ऑप्शन बी स्माइलाजेनिन, ऑप्शन सी डायस्कोरिन, ऑप्शन डी यामोजेनिन. तो डायस्कोरिया डेल्टोइडा, that is a glycosidal plant. So which alkaloid is present in the glycosidal plant? मतलब ना नॉर्मली ये डायस्कोरिया जो है यामरूट, कोई बोलते हैं यामरूट, तो इट इज अ ग्लाइकोसाइडल प्लांट. नॉर्मली इट इज अ ग्लाइकोसाइड प्लांट, बट सम अल्कोलाइड्स आर फाउंड इन द दिस प्लांट. so question is nothing but the same. So which alkaloid is present in the Dioscorea deltoida root? तो Dioscorea deltoida में कौन सा अल्कोलॉइड है? which alkaloid is there in a Dioscorea deltoida? तो ऑप्शन ए डायोजेनिन, ऑप्शन बी मिलाजेनिन, ऑप्शन सी डायस्कोरिन, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे यामोजेनिन. सो विच अल्कोलाइड इज प्रेजेंट इन द डायस्कोरिया? करेक्ट आंसर इज द डायस्कोरिन. डायस्कोरिन इज द करेक्ट आंसर.
डाइस्कोरिया डेल्टोइडा फैमिली है ना, लेगुनासी, डाइस्कोरिया डेल्टोइडा फैमिली जिंजिफेरेसी, डायोजेनिन, मिलाजेनिन, डाइस्कोरिन, यामोजेनिन। तो ये डाइस्कोजेनिन जो होता है दैट इज यूज्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग्स, आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग कंटेनिंग sapogenin, that is the hicconin. Identify the crude drug containing sapogenin known as the hicconin which is used as a aphrodisiac. देखो aphrodisiac means क्या होता है? aphrodisiac, it is the term any chemical which is stimulant to your sexual drive known as a aphrodisiac. तो sexual stimulant को क्या बोलते हैं? aphrodisiac. तो identify the crude drug containing sapogenin which is known as a hicconin and used as aphrodisiac from the following. ऑप्शन ए दिया है शतावरी, ऑप्शन बी दिया है डायस्कोरिया, ऑप्शन सी दिया है सफेद मुसड़ी, ऑप्शन डी दिया है ब्राह्मी। तो आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग कंटेनिंग sapogenin particularly hicconin used as aphrodisiac. ऑप्शन ए शतावरी, ऑप्शन बी डायस्कोरिया, ऑप्शन सी सफेद मुसड़ी एंड ऑप्शन डी ब्राह्मी। देखो कौन सा सैपोनिन एफोडियासिक है? ओके, बेसिकली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन लाइक दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बोलना है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रिमेंबर दोस्तों, यहाँ पे सफेद मुसड़ी आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, मुसड़ी पावर, सफेद मुसड़ी, मुसड़ी की शक्ति ऐसे नाम से कुछ प्रिपरेशंस आते हैं, कुछ पाउडर्स आते हैं। तो सफेद मुसड़ी इज कंटेनिंग सैपोजेनिन विच इज हिक्कोनिन, हिक्कोजेनिन विच इज यूज्ड एज अ एफोडियासिक, एफोडियासिक, एफोडिसिक तो नोन एज अ सेक्स स्टिमुलेंट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। Powdered glyceriza was studied for microscopic character and observed that presence of starch, xylem, pith. Identify the correct statement. ठीक है, देखो powdered microscopy of glyceriza glabra family leguminosae, so it was studied. Powdered glyceriza was studied, okay, for microscopic characters and observe, क्या observe किया उन्होंने? Observe that presence of starch, xylem, pith. Identify the correct statement. ऑप्शन ए दिया है पाउडर कंसिस्ट ऑफ स्टोलन, ऑप्शन बी दिया है पाउडर कंटेन रूट, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे पाउडर इज अडल्ट्रेटेड, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो याद रखना है ये दो चीजें जो है स्टार्च, जाइलम, पीट, ये किस में होगा? स्टार्च, जाइलम एंड पीट। These three, starch, xylem and pith, is not found in the stolons of glyceriza. Glyceriza का source क्या होता है? It consists of the roots and stolons of Glyceriza glabra family Leguminosae. So it is present in the root, starch, xylem, pith. ये root में होता है। तो correct answer क्या होगा यहाँ पे? Because powder consists of a powder contain roots. पाउडर कंटेन फ्रूट्स। चलिए ग्लिसराइजा ग्लैब्रा क्या है? इट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर एंड वैरायटी ऑफ अदर कंडीशंस आल्सो। देखो क्वेश्चन नंबर 45, देखो यहाँ पे ग्लिसराइजिक एसिड इज अ डैश डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। ग्लिसराइजिक एसिड इज अ डैश डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा है भाई? पूछा है ग्लिसराइजिक एसिड इज अ डैश डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज से ज्यादा स्वीटर है, कम है, क्या है बोलो? तो ग्लिसराइजिक एसिड इज एक्टिव कंटेंट ऑफ ग्लिसराइजा एंड इट इज अ मोर स्वीटर देन सुक्रोज, बट हाउ मच मोर? रिमेंबर ग्लिसराइजिक एसिड इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज एंड इट इज अ 50 times more sweeter than sucrose. कितना टाइम्स है? 50 times. 50 times more sweeter than sucrose.
50 times more sweeter than sucrose. You can check the answers की ओर here. देखो 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए, 42 का आंसर था ऑप्शन सी, 43 का भी ऑप्शन सी था, 44 का आंसर था ऑप्शन बी, एंड 45 का भी आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी. प्लीज शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट बेनिफिटेड. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46. द बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द ग्लिसराइजा. बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द ग्लिसराइजा. क्या पूछा है, विच इज द बिटर प्रिंसिपल इन द ग्लिसराइजा. बिटर प्रिंसिपल कौन सा है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा में. ग्लिसराइजा ग्लैब्रा इज आल्सो नोन एज जेस्ट मध इन मराठी, और इट इज आल्सो नोन एज अ मुलेथी इन द हिंदी. हिंदी में इसको मुलेथी बोलते हैं, मराठी में इसको जेस्ट मध बोलते हैं. Which is the bitter principle present in the glyceriza? So option A is glyceramarine. Option A glyceramarine. Option B liquatin. Option C दिया है glycerazine. Option D दिया है glyceridinic acid. So which is the bitter principle present in the glyceriza? Option A glyceramarine. Glyceramarine. Option B liquatin. Option C glycerazine. Option D दिया है यहाँ पे ग्लिसराइजिनिक एसिड. ओके, तो ग्लिसराइजिनिक एसिड. तो बिटर प्रिंसिपल कौन सा है ग्लिसराइज में, ग्लिसरामैरिन है या फिर लिक्वार्टिन है या फिर ग्लिसराइजिन है या फिर ग्लिसरेटिनिक एसिड है. तो देखो दोस्तों, ग्लिसरामैरिन इज अ बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द ग्लिसराइजा. ग्लिसराइजा वैसे स्वीट इन टेस्ट होता है. Glyceriza is a sweet in taste, but in that you have one bitter principle known as a glyceramarine. इसमें एक bitter principle होता है glyceramarine, याद रखना है. Glyceriza glabra, family Leguminosae. It consists of a dried stolons of the plant. Glyceriza glabra, Leguminosae family. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्लिसराइजिन. सिनोनिम क्या है उसका, ग्लिसराइजिन. ओके, सिनोनिम मतलब ग्लिसराइजा का जेस्ट मध मराठी में, और हिंदी में होता है मुलेथी. क्वेश्चन नंबर 47 देख लो दोस्तों. एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ. तो ग्लिसराइजा इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर में ये यूज किया जाता है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा और जेस्ट मध. तो एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ. ऑप्शन ए दिया है अल्कोलॉइडल कंटेंट. ऑप्शन बी दिया है ग्लाइकोसाइडल कंटेंट. ऑप्शन सी दिया है फ्लेवोनाइडल कंटेंट. ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द. तो एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ. तो एंटी अल्सर एक्टिविटी जो है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा का, तो किस कारण है, किसकी वजह से, व्हाट इज द एक्टिव कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी अल्सर एक्टिविटी. ठीक है, देखो ऑप्शन ए अल्कोलॉइडल कंटेंट, ऑप्शन बी दिया है आपका ग्लाइकोसाइडल कंटेंट, ऑप्शन सी दिया है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है फ्लेवोनॉइडल कंटेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. तो देखो आप बोलो मुझे व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. तो राइट डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो रिमेंबर दोस्तों, एंटी अल्सर एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ द फ्लेवोनॉइड कंटेंट. It is because of the flavonoid content. Anti-ulcer activity of glyceriza is because of the flavonoid content, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखो. Which anti-peptic ulcer principle found in the glyceriza? Which anti-peptic ulcer principle found in the glyceriza? Which anti-ulcer principle found in the glyceriza? Glyceriza glabra और मुलेथी में कौन सा anti-ulcer principle होता है? Which anti-ulcer principle is found in the glyceriza? So option A glyceramarine, option B isolicotin, option C glycerazine, option D glyceridinic acid. Which antipeptic ulcer principle is found in the glyceriza? You have to answer in the comment box. Comment box में आंसर करना है आपको. You can answer in the comment box. Try to answer in the comment box with the question number so that I can correct you if you are wrong. So which anti-ulcer principle found in the glyceriza?
ग्लिसरामैरिन, आइसोलिक्वार्डिन, ऑप्शन सी ग्लिसराइजिन, ऑप्शन डी दिया है ग्लिसराइजेटनिक एसिड, ग्लिसराइजेटेनिक एसिड. So remember the correct answer for this question is nothing but the isoliquartine. So isoliquartine is responsible for the antipeptic ulcer principle found in the glycyrrhiza. Question number 49 देखो, anti-inflammatory activity of glycyrrhiza is because of. Question number 49, anti-inflammatory activity of glycyrrhiza, anti-inflammatory activity of glycyrrhiza. Yes, anybody can tell me anti-inflammatory activity of glycyrrhiza is because of the. ऑप्शन ए दिया है ग्लिसरामैरिन, ऑप्शन बी लिक्वार्टिन, ऑप्शन सी दिया है ग्लिसराइजिन, ऑप्शन डी दिया है ग्लिसराइजेटिक एसिड. देखो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ. तो ग्लिसराइजा का एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो किसके कारण होता है? एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ ग्लिसराइजा इज बिकॉज ऑफ which content? ऑप्शन ए ग्लिसरामैरिन, ऑप्शन बी लिक्वार्टिन, ऑप्शन सी ग्लिसराइजिन, ऑप्शन डी ग्लिसराइजेटिक एसिड. रिमेंबर दोस्तों, यहाँ पे ग्लिसराइजिन इज द एक्टिव प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी इंफ्लेमेटरी. Glycyrrhizin is an active principle responsible for the anti-inflammatory activity of Glycyrrhiza glabra. चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 50, which variety of licorice is used for adulteration of genuine drug? Which variety of licorice is used for the adulteration of genuine drug? तो ओरिजिनल जो ड्रग है ग्लिसराइजा ग्लैब्रा फैमिली लेगुनासी, उसकी अडल्ट्रेंट कौन है? उसके अडल्ट्रेशन के लिए कौन सा वैरायटी यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्पेनिश लिकोरिस, ऑप्शन बी पर्शियन लिकोरिस, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे रशियन लिकोरिस, ऑप्शन डी दिया है चाइनीज लिकोरिस. तो कौन सा लिकोरिस है विच इज यूज्ड एज अडल्ट्रेंट फॉर जुनाइन ड्रग? यस, एनीबडी? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो. करेक्ट आंसर हमें चाहिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बैड बॉय, आप मुझे पर्सनली फोन करो, मैं आपको बोलूंगा. क्यों बोलता हूं मैं ना बैड बॉय? आप मुझे पर्सनली फोन करो, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई आई टॉक रैशली विद अदर जीपैट. ठीक है, आप मुझे फ़ोन करो, मैं आपको बोलूँगा. ठीक है, यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, यहाँ पे नहीं बोल सकता मैं, आप फ़ोन करो. ठीक है. विच वैरायटी ऑफ लिकोरिस इज यूज्ड एज अडल्ट्रेशन फॉर द जुनाइन ड्रग? ऑप्शन ए स्पेनिश लिकोरिस, ऑप्शन बी पर्शियन लिकोरिस, ऑप्शन सी रशियन लिकोरिस, ऑप्शन डी चाइनीज लिकोरिस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो रिमेंबर, इसका आंसर रहेगा आपका चाइनीज लिकोरिस. चाइनीज लिकोरिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चाइनीज लिकोरिस. ठीक है, यू कैन चेक द आंसर की ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर था ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर था आपका ऑप्शन बी. 49 का आंसर था ऑप्शन सी एंड 50 का आंसर है आपका ऑप्शन डी. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर GPAT Niper DI Pharmacist. क्वेश्चन नंबर 51, which plant is cultivated in the garden as a potted plant for its graceful with the leaves and flowers? देखो क्वेश्चन पूछा है which plant is cultivated as a garden in a garden. एक कौन सा प्लांट है जो गार्डन में कल्टिवेट किया जाता है एज अ पॉटेड प्लांट, मतलब आपके कुंडी में लगाने वाला प्लांट है. Which plant is cultivated in the garden as a potted plant for its graceful appearance of leaves and flowers? Option A शतावरी, option B ब्राह्मी, option C शंखपुष्पी, option D ग्लिसराइजा. So you have to answer in the comment box which plant is cultivated in the gardens as a potted. ठीक है, अगर आपके पास में नंबर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी नंबर देता हूँ. वैसे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा,
है ना, 9766654377 है ना। किसी को कोई डाउट है दे कैन कॉल मी डायरेक्टली, है ना। बैड बॉय होगा, गुड बॉय होगा, डजेंट मैटर, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको गुड बॉय बना दूंगा, ठीक है। आपका नाम है बैड बॉय, लेकिन मैं आपको गुड बॉय बना दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। विच प्लांट इज कल्टिवेटेड इन द गार्डन एज अ पॉटेड प्लांट? ऑप्शन ए शतावरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी शंखपुष्पी, ऑप्शन डी ग्लिसराइजा। तो द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द शतावरी, राइट। नहीं, ग्लिसराइजा नहीं यूज करते प्रसाद चिरे, ग्लिसराइजा एज अ पॉटेड प्लांट नहीं होता है, शतावरी एज अ पॉटेड प्लांट होता है। आप घर में भी शतावरी का प्लांट लगा सकते हो घर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, बेटुलिक एसिड इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 52, बेटुलिक एसिड, बेटुलिक एसिड इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, बेटुलिक एसिड इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन ए शतावरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी शंखपुष्पी, ऑप्शन डी ग्लिसराइजा। बेटुलिक एसिड किसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, राइट। गया क्या बैड बॉय गया, अब बस नंबर दिया तो बैड बॉय भाग गया, है ना। बात करने की हिम्मत नहीं, बस उसने क्या बोल के भेजा आएगा आपको यहाँ पे कमेंट करने के लिए, या? आप डायरेक्टली फोन करो ना मुझे, डायरेक्टली फोन करके पूछो, यहाँ पे यूट्यूब पे, है ना, यूट्यूब पे महिलाओं जैसे कमेंट नहीं करने का, सामने फोन करने का, ठीक है। बेटुलिक एसिड इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन ए शतावरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी शंखपुष्पी, ऑप्शन डी ग्लिसराइजा। तो बेटुलिक एसिड इज फाउंड इन द ब्राह्मी, बेटुलिक एसिड इज फाउंड इन द ब्राह्मी, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 देख लो, पेनाक्स जिनसेंग, पेनाक्स जिनसेंग इज आल्सो नोन एज, पेनाक्स जिनसेंग इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए अमेरिकन जिनसेंग, ऑप्शन बी चाइनीज जिनसेंग, ऑप्शन सी कोरियन जिनसेंग, ऑप्शन डी वियतनाम जिनसेंग। तो पेनाक्स जिनसेंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पेनाक्स जिनसेंग इज आल्सो नोन एज, पेनाक्स जिनसेंग इज आल्सो नोन एज। एक चाइनीज मूवी है उसमें भी जिनसेंग के बारे में बहुत कुछ बोला है, एक चाइनीज मूवी में एक हीरो रहता है बूढ़ा, उसने जिनसेंग लेके बैठता है। पेनाक्स जिनसेंग इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए अमेरिकन जिनसेंग, ऑप्शन बी चाइनीज जिनसेंग, ऑप्शन सी कोरियन जिनसेंग, ऑप्शन डी वियतनाम जिनसेंग। पेनाक्स जिनसेंग इज अ सिनोनिम ऑफ, याद रखना है दोस्तों, कोरियन जिनसेंग, इट इज अ कोरियन जिनसेंग। पेनाक्स जिनसेंग इज अ कोरियन जिनसेंग। देन क्वेश्चन नंबर 54 देखो, इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, देखो इंपॉर्टेंट है, इंडियन पेनीवर्ट, इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन ए दिया है बक्कोपा मोनेरी, ऑप्शन बी दिया है सेंटेला असिएस्टिका, ऑप्शन सी दिया है मेमोर्डिका पिराटियाना, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो देखो क्वेश्चन पे पूछा है आपको कि इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन ए बक्कोपा मोनेरी, ऑप्शन बी सेंटेला असाइस्टिका असिएस्टिका, देन ऑप्शन सी दिया है मेमोर्डिका चिरांटिया, एंड ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन ए बक्कोपा मोनेरी, मतलब बक्कोपा मोनेरी मतलब ब्राह्मी होता है, ऑप्शन बी सेंटेल असेस्टिका, ऑप्शन सी मेमोर्डिका चरंटिया, मेमोर्डिका चरंटिया, इसका मतलब होता है, मेमोर्डिका मतलब आपका ये करेला, ठीक है, ये होता है ब्राह्मी। तो इंडियन पेनीवर्ट इज अ सिनोनिम ऑफ ऑप्शन बी, दैट इज अ सेंटेल असिस्टिका, सेंट्रल असिस्टिका, ये आशिया में पाया जाता है, इसलिए एशिया में पाया जाता है, इसलिए सेंट्रल असिस्टिका इंडियन पेनीवर्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 देख लो,
Which plant amongst the option has a good sugar lowering property? Which plant amongst the following has a good sugar lowering property? ऑप्शन ए दिया है बकोपा मोनीरा, ऑप्शन बी सेंटिल असिस्टिका, ऑप्शन सी दिया है मेमोर्डिका चरांटिया, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। यस, तो आपको मालूम है कि शुगर लोअरिंग प्रॉपर्टी किस में होता है? शुगर लोअरिंग प्रॉपर्टी किस में होता है? So one plant is having sugar lowering property. What is the name of that plant? तो रिमेंबर, आपने आपके दादाजी से या फिर कोई आपके घर में जो पुराने लोग हैं, जब पुराने ज़माने के लोग, उनने आपको बोला होगा कि करेला, तो मेमोर्डिका, ओके, मेमोर्डिका चरांटिया, दैट इज हैविंग ब्लड sugar lowering property. So option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Which plant among the option has a blood sugar lowering property? तो ऑप्शन ए दिया है 51 में, 51 का आंसर है ऑप्शन ए, 52 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 54 का आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी, and 55 का आंसर आपका ऑप्शन सी। So these are the really important MCQs for your upcoming GPAT Niper ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एग्जाम, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके GPAT Niper DI फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रैटल स्नेक रूट इज अ सिनोनिम ऑफ, देखो rattlesnake root is a synonym of, you can answer the question in the comment box. rattlesnake root is a synonym of, rattlesnake root किसका synonym है भाई? rattlesnake root is a synonym of, rattlesnake root is a synonym of, rattlesnake root is a synonym of, option A मोमोर्डिका, ऑप्शन बी गोखरू, ऑप्शन सी वाइल्ड चेरी बार्क, ऑप्शन डी सनेगा। तो देखो रैटल स्नेक रूट बार है ना, रैटल स्नेक रूट ना, रैटल स्नेक मालूम है आपको? रैटल स्नेक मतलब रैटल स्नेक में उसको मराठी में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको मराठी में? एक सांप का प्रजाति होता है ये रैटल स्नेक, जो मोस्टली ये जो रेती होता है, रेती में पाया जाता है रैटल स्नेक, बहुत ही जहरीला होता है, सबसे ज्यादा जहरीला यही है रैटल स्नेक। तो रैटल स्नेक रूट इज अ सिनोनिम ऑफ, ऑप्शन ए मोमोर्डिका, ऑप्शन बी गोखरू, ऑप्शन सी वाइल्ड चेरी बार्क एंड ऑप्शन डी है सनेगा। करेक्ट आंसर रहेगा इसका सनेगा, करेक्ट आंसर विल बी द सनेगा, राइट। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्वीट टेस्ट ऑफ सनेगा इज ड्यू टू, इसमें तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, स्वीट टेस्ट ऑफ सनेगा इज ड्यू टू, लॉजिक लगाओ इसमें, स्वीट टेस्ट ऑफ सनेगा इज ड्यू टू, सनेगा प्लांट का स्वीट टेस्ट क्यों है? सनेगा है ना, सनेगा स्वीट टेस्ट ऑफ सनेगा इज ड्यू टू, ऑप्शन ए सेनेगिन, ऑप्शन बी पॉली गैलिटॉल, ऑप्शन सी मिथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम, राइट। So you have to answer in the comment box. आप कमेंट बॉक्स में आंसर करो इसका। स्वीट टेस्ट ऑफ सेनेगा इज ड्यू टू, स्वीट टेस्ट ऑफ सेनेगा इज ड्यू टू, स्वीट टेस्ट ऑफ सेनेगा इज ड्यू टू, ऑप्शन ए सेनेजिन, ऑप्शन बी दिया है पॉली गैलेटॉल, ऑप्शन सी दिया है मिथाइल सैलिसिलेट, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द। देखो शुगर जैसा क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, शुगर जैसा क्या दिख रहा है ना, पॉली गैलेटॉल, गैलिटॉल, दिस इज द करेक्ट आंसर, पॉलीगैलिटॉल, ओके। स्वीट टेस्ट ऑफ सेनेगा इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीगैलिटॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, व्हिच एक्टिव कांस्टिट्यूएंट इज रिस्पांसिबल फॉर द ओडर ऑफ सेनेगा, व्हिच एक्टिव कांस्टिट्यूएंट इज रिस्पांसिबल फॉर द ओडर ऑफ सेनेगा, रिस्पांसिबल फॉर द ओडर ऑफ सेनेगा,
Which active constituent is responsible for the odor of Seneca? Which active constituent is responsible for the odor of Seneca? Option A senegin, option B polygalitol, option C methyl salicylate, option D दिया है none of the above. Which active constituent is responsible for the odor of Seneca? odor देखो यहाँ पे टेस्ट के किसकी रीजन से था, टेस्ट भी पॉलीगैलिटॉल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट टेस्ट, राइट. नाउ ओडर के लिए क्या है, तो ओडर कौन देगा, सेनेजिन, तो ये तो उसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है, ये नहीं. पॉलीगैलिटॉल ये तो शुगर है. देन मिथाइल सैलिसिलेट, डेफिनेटली मिथाइल सैलिसिलेट. सो मिथाइल सैलिसिलेट विल बी द आंसर बिकॉज मिथाइल सैलिसिलेट हैज अ ओडर and this is responsible for the odor of Seneca. Correct answer will be option C. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which crude drug is known as a caltrops fruit? ये क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है. Which crude drug is known as a caltrops fruit? Option A मेमोर्डिका, ऑप्शन B गोखरू, ऑप्शन C वाइल्ड चेरी बार्क एंड ऑप्शन डी दिया है सेनेगा. ठीक है, तो विच फ्रूट ड्रग इज नोन एज कैल्ट्रॉप्स फ्रूट. तो कैल्ट्रॉप्स फ्रूट किसको बोलते हैं, कैल्ट्रॉप्स फ्रूट किसको बोलते हैं, ये हिंदी तो आपको गांव में पाया जाता है ये, और बहुत ही मतलब एक बार इतना मतलब काटे रहते हैं उसमें. इट इज अ गोखरू. सो गोखरू इज नथिंग बट द कैल्ट्रॉप्स फ्रूट. क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है पहले, importantly. Gokhru is also known as a caltrops fruit. Which drug is used in the treatment of gonorrhea? चलो फार्माकोलॉजी में जैसे क्वेश्चन आ रहा है इसमें. Which drug is used in the treatment of gonorrhea? Option A Tribulus terrestris, उसको बोलता है छोटा गोखरू. देन Palladium murex, उसको बोलते हैं बड़ा गोखरू. ऑप्शन सी दिया है ग्लिनस अपोजिटिफोलिया Curious Indian Seneca, and option D दिया है none of the above. Which drug is used in the treatment of gonorrhea? Gonorrhea मतलब क्या, it is a STD, sexually transmitted disease. क्या होता है STD? तो इसका causative organism कौन है, causative organism for gonorrhea is nothing but the Palladium. ओके, तो उसमें आपको आएगा है ना. तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या फिर होगा, है ना, पैलेडियम म्यूरेक्स. पैलेडियम म्यूरेक्स इज द वैरायटी ऑफ गोखरू विच इज यूज्ड टू ट्रीट द गोनोरिया. ठीक है, गोनोरिया के लिए ये ट्रीटमेंट है. विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया? दैट इज द पैलेडियम म्यूरेक्स, दैट इज नोन एज अ बड़ा गोखरू. Tribulus terrestris is known as a छोटा गोखरू एंड Palladium murex is known as a बड़ा गोखरू. बड़ा गोखरू बड़े काम करता है. ठीक है, यू कैन चेक द आंसर्स ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर था डी. क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर था ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर था ऑप्शन सी. 59 का आंसर था ऑप्शन बी एंड 60 का आंसर भी है ऑप्शन बी. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेट बेनिफिटेड. Which crude drug is a common ingredient of Dashmulorist and Chyawanprash? देखो, which crude drug is a common ingredient for Dashmulorist and Chyawanprash? तो Chyawanprash Dashmulorist में क्या आता है? Common ingredient for Chyawanprash and Dashmulorist. Dashmulorist क्या होता है और Chyawanprash क्या होता है? So these are the Ayurvedic dosage form. Dashmulorist and Chyawanprash. So which crude drug is a common ingredient for Dashmulorist and Chyawanprash? तो Dashmulorist में या फिर Dashmulorist and Chyawanprash में एक कौन सा कॉमन इंग्रेडिएंट है? ऑप्शन ए जिनसेंग, ऑप्शन बी अश्वगंधा, ऑप्शन सी लिकोरिस, ऑप्शन डी दिया है गोखरू. तो ऑप्शन ए जिनसेंग, ऑप्शन बी दिया है अश्वगंधा, ऑप्शन सी दिया है लिकोरिस, ऑप्शन डी दिया है गोखरू. तो याद रखना है दोस्तों, एक गोखरू बहुत बड़े काम की चीज है. गोखरू इज अ कॉमन
इंग्रेडिएंट फॉर दशमोलारिस्ट एंड च्यवनप्राश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप तो आंसर नहीं कर रहे हो, मुझे ही देना पड़ रहा है आंसर। ओके चलो, विच फैमिली इज मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जीपैट 2020, जीपैट 2020 में आ चुका है। विच फैमिली इज मोस्ट कॉमन, ओके, विच फैमिली, इन विच फैमिली मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, मतलब साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स किस फैमिली में जब पाए जाते हैं। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर विच, ओके, विच फैमिली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, कौन से फैमिली के प्लांट में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड मीन्स मतलब साइनाइड कंटेनिंग ना साइनोफोरिक एसिड रहता है उसमें। ऑप्शन ए लेगुमिनोसी, ऑप्शन बी रोजेसी, ऑप्शन सी क्रूसीफेरी, ऑप्शन डी जाइगोफाइलेसी। ठीक है, लेगुमिनोसी, रोजेसी, ऑप्शन सी क्रूसीफेरी, ऑप्शन डी जाइलोफाइलेसी, जाइगोफाइलेसी। So which family is most prominent for cyanogenetic glycoside? Which family is most prominent for cyanogenetic glycoside? Option A Leguminosae, option B Rosaceae, option C Cruciferae, option D Zygophyllaceae. What is the correct answer? दोस्तों याद रखना Rosaceae, जैसे आपका ये प्लांट है कौन सा, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट इज आल्सो हैविंग साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, बिटर आलमंड इज आल्सो हैविंग साइनोजेनेटिक साइनोफोरिक ग्लाइकोसाइड्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, विच टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट आर प्रेजेंट इन द गोखरू। विच टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, विच टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर फाउंड इन द गोखरू। गोखरू में कौन से कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल है भाई। ऑप्शन ए दिया है प्रिज्मेटिक, ऑप्शन बी दिया है एसिकुलर, ऑप्शन सी दिया है रोजेट, ऑप्शन डी दिया है क्लस्टर। तो गोखरू के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको है ना कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आएंगे और वो किस टाइप के आएंगे, रोजेट टाइप के। तो रोजेट टाइप ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स दे आर फाउंड इन द गोखरू। ट्रिबुलस टेरेस्टिस है ना, वो उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ड्राइड सिंस ऑफ ट्रिबुलस टेरेस्टिस। Which type of calcium oxalate crystal are found in the गोखरू। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देख लो, which almond is known as a sweet almond and does not have amygdalin। ठीक है, देखो which almond is known as a sweet almond, which almond is known as a sweet almond and known as a, okay, which almond is known as a sweet almond and does not have amygdalin। So which almond is known as a sweet almond and does not have amygdalin। amygdalin क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ये क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। amygdalin साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। तो ऑप्शन ए प्रोनस amygdalus dulcis, ऑप्शन बी प्रोनस amygdalus और हमारा, ऑप्शन सी प्रोनस serotinia and option D none of the above। So which is known as a sweet almond? So प्रोनस amygdalus dulcis, प्रोनस amygdala और हमारा प्रोनस सेरोटिना, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो याद रखना है दोस्तों, प्रोनस amygdalus dulcis, प्रोनस amygdalus dulcis इज नोन एज अ स्वीट आलमंड। आप जो बादाम खाते हो वो क्या है, प्रोनस amygdalus dulcis है ना। प्रोनस amygdalus हमारा ये क्या है ना, बिटर आलमंड है, दैट हैज अ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन द ब्लैक मस्टर्ड। तो आपका जो है ना मोहरी होता है, आपका जो है ना सरसों होता है, उसमें कौन सा है ना, उसमें कौन सा ग्लाइकोसाइड है। विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन द ब्लैक मस्टर्ड। मस्टर्ड में दो टाइप आता है, एक रेड मस्टर्ड आता है, एक ब्लैक मस्टर्ड। विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन द ब्लैक मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड। ऑप्शन ए फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी स्टेरॉयडल सैपोनिन, ऑप्शन सी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन डी आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी नाइपर में भी आ चुका है ये, और जीपैट में भी आ चुका है, बोथ नाइपर एज वेल एज जीपैट।
So which type of glycoside present in the black mustard? Option A flavonoid glycoside, option B steroidal saponin, option C cyanogenetic glycoside, option D isothiocyanate glycoside. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हो गया? तो आपके ब्लैक मस्टर्ड में क्या होता है? ब्लैक मस्टर्ड में होता है आपका isothiocyanate glycoside, isothiocyanate glycoside. You can check the answers. क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर था आपका ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर था आपका, है ना, ऑप्शन 63 का आंसर था सी, 64 का ए एंड लास्टली 65 का डी. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन ऑर्डर दिस मैजिक बुलेट फॉर GPAT Niper DI Pharmacist. Read 2 or 3 times before exam and qualify 200%. It's my guarantee. You can expect at least more than 70-80 MCQs from single book in a GPAT exam from Fundamentals of GPAT Niper DI Pharmacist. For MCQ practice, you can order these books also. Okay. You can also join my online course for GPAT Niper DI Pharmacist. All GPAT, Niper, Drug Inspector and Pharmacist. All things are covered in the one batch only. एक ही बैच में सब कुछ कवर होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है कुछ. In this you are going to have live lecture daily. All lectures are subject wise and chapter wise. Okay, then recorded lectures will also available. Whatever live we are going to take, same lecture will be available in the recorded form. Study material hard copy. Okay, study material hard copy. In the study material you are going to get these 2 books and online test series will also be there. Right? So everything is in a only 5,000 rupees. Only 5,000. Okay. कैन यू इमेजिन, ओनली 5,000. कोई भी 5,000 में कोर्स नहीं दे रहा है आपको, बस मैं ही दे रहा हूँ. ठीक है, एंड वैलिड फॉर 2 ईयर्स. अगर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो वैलिड फॉर 2 ईयर्स. सेकंड ईयर के बच्चों के लिए मैं डायरेक्टली नहीं बोलता हूँ, है ना. बाकी लोग है बिजनेस ओरिएंटेड, वो सेकंड ईयर के बच्चों को भी बोलते हैं नहीं नहीं आपको अभी से करना है. अरे भाई उसको जीने दो पहले. तो सेकंड ईयर से ही क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती किसी को, है ना. वो आपको कोट पहन के कुछ भी बोलेंगे तो का मतलब ये नहीं कि बाकी सब एड़े है. तो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो दोस्तों, tannins, questions from tannins. So which one is the wrong statement about the tannins? Tannins, which one is the wrong statement about the tannins? Which one is the wrong statement about the tannins? Option A, they can precipitate the protein. Option B, chemically is a mixture of polyphenols. Option C, organic non-nitrogenous derivative of polyhydroxy benzoic acid. Option D दिया है यहाँ पे organic nitrogenous polyhydroxy benzoic acid. देखो tannins में कौन सा wrong statement है? Which one is the wrong statement about the tannins? Tannins क्या होते हैं? They are having protein precipitation property, है ना, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी. तो आपको आपका शेविंग करने के बाद में आप क्या करते हो, वो नाई जो होता है शेविंग करने के बाद में वहाँ पे आफ्टर शेव लोशन लगाता है ना, आफ्टर शेव लोशन. बट पुराने ज़माने में आफ्टर शेव लोशन नहीं था. पुराने ज़माने में एक फिटकरी का टुकड़ा देते थे, है ना, आलम, फिटकरी का टुकड़ा आलम, है ना. आफ्टर शेविंग फिटकरी का टुकड़ा वहाँ पे लगा देते थे. तो आलम इज अ प्रोटीन प्रेसिपिटेंट. सो the compound which precipitate your surface protein, it is known as astringent. So tannins are having astringency. Tannins are having astringent property. Okay. So which is a wrong statement about the tannins? Option A दिया है they can precipitate the protein. Option B दिया है chemically is a mixture of polyphenols. Option C दिया है organic non-nitrogenous derivative of polyhydroxy benzoic acid. Option D दिया है organic nitrogenous polyhydroxy benzoic acid. तो देखो दोस्तों, tannins they can precipitate the protein, ये तो सही है. tannins they can precipitate the protein. chemically they are the mixture of polyphenol, ये भी सही है, right. and they are the organic non nitrogenous. non मतलब क्या, नाइट्रोजन नहीं है उसमें. they are the organic non nitrogenous derivative of polyhydroxy benzoic acid, ये भी करेक्ट है. यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक वाला आंसर. ओके, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. So they are not organic nitrogen containing derivative. They are the organic
नॉन नाइट्रोजन कंटेंट एयर, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टैनिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट। क्या है भाई? टैनिन्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट। टैनिन्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्लांट। केमिकल नेचर ऑफ टैनिन्स इज। तो टैनिन्स क्या है? इट इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट। तो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ टैनिन्स? ऑप्शन ए दिया है एसिडिक, ऑप्शन बी दिया है बेसिक, ऑप्शन सी दिया है न्यूट्रल, ऑप्शन डी दिया है ज्यूट्राइन। तो केमिकल नेचर क्या है टैनिन्स का? इफ यू चेक द केमिकल नेचर ऑफ टैनिन्स, व्हाट इज दैट? दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल डेरिवेटिव, दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल और दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इनका नेचर क्या होगा भाई? ऑब्वियसली एसिडिक नेचर होगा ना इनका, दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक, टैनिन्स आर एसिडिक इन नेचर, ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, which test is not a chemical test for identification of tannins? Which test is not a chemical test for identification of tannins? देखो पूछा है which test is not a chemical test for identification of tannins? Which test is not a chemical test for identification of tannins? ऑप्शन ए गोल्डबीटर स्किन टेस्ट, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, ऑप्शन सी दिया है ओक्साजोन टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है मैच स्टिक टेस्ट। तो देखो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स मेन टेस्ट होता है आपका गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, दूसरा टेस्ट होता है वेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट, तीसरा टेस्ट होता है मैच स्टिक टेस्ट, चौथा टेस्ट होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। बट ओक्साजोन टेस्ट इसका है, ओक्साजोन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर शुगर्स। ओक्साजोन टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर शुगर। यहाँ पे करेक्ट क्या आंसर होगा भाई लोग? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 विल बी द ऑप्शन सी। ओक्साजोन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर right. So which test is not a chemical test for identification of tannins? So what is that? That is the oxazone test. Question number 4 देखो, tannins will form a red color with the vanillin hydrochloride test and match stick test because of the formation of। तो tannins का जब टेस्ट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट vanillin hydrochloride के साथ में या फिर मैच स्टिक टेस्ट में, so tannins will form a red color in the vanillin hydrochloride test and match stick test. So it is because of the formation of option A catechin, option B pyrogalol, option C chloroglycinol, option D ellagic acid. तो tannins जब red color देते, tannins will give you red color in the vanillin hydrochloride test as well as in the match stick test. So why that red color is there? बिकॉज ऑफ द ऑप्शन ए कैटेचिन, ऑप्शन बी पायरोगेलर, ऑप्शन सी दिया है यहाँ पे है ना फ्लोरोग्लिसनॉल, ऑप्शन डी दिया है इलाजिक एसिड। तो करेक्ट आंसर इज नथिंग बट फ्लोरोग्लिसनॉल। तो फ्लोरोग्लिसनॉल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लिसनॉल which will give you red color or pink color or match stick test मध्ये in the match stick test as well as vanillin hydrochloride test it will give you red color because of the formation of फ्लोरोग्लिसनॉल। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। which class of tannin does not obey the gold bitter skin test? which class of tannin does not obey the gold bitter skin test? तो कौन सा क्लासेस का टैनिन्स गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट ओबे नहीं करता? Which class of tannin does not obey the gold bitter skin test? Gold bitter skin test. तो टैनिन ने तो ये टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए तभी जाके वो टैनिन होता है, बट देयर इज अ वन क्लास ऑफ टैनिन्स। टैनिन्स जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वन इज अ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, सेकंड वन इज अ कंडेंस्ड टैनिन, थर्ड वन इज a pseudotannin.
So remember, condensed tannin they will not give you a positive test. Okay, so you can see pseudotannins also will not give you positive test. Condensed tannin after hydrolysis they will release the tannins and then they can give the test positive, है ना. तो ये 3 क्लासेस होते हैं tannins के, हाइड्रोलाइजेबल tannins, कंडेंस्ड tannins एंड pseudotannins, और एक होता है फ्लोबा tannins. तो pseudotannins will not give you the gold beater skin test positive. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होता ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होता ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर होता ऑप्शन सी. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला. देखो, ड्राइड राइप सीड्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला फैमिली कोम्ब्रेडेसी. Dried ripe seeds of Terminalia cebula family Combradaceae is a biological source of. So Terminalia cebula, right? Terminalia cebula इसका biological source है. Terminalia cebula is the biological source of. Terminalia cebula. Terminalia cebula is the biological source of. It is a source of option A Hardy, option B Behra, option C Imblica, option D Catechu. So Terminalia cebula family Combradaceae is a source of. Terminalia cebula family Combradaceae is a biological source of. Option A Hardy, option B Behra, option C Imblica, option D Catechu. तो हिरड़ा बोलते हैं मराठी में इसको, बेहड़ा को बेहरा बोलते हैं, इम्ब्लिका एंड कैटेचू. रिमेंबर इट इज अ सोर्स ऑफ हरडे, है ना, विविध की. टर्मिनालिया चेबुला फैमिली कॉम्ब्रेडेसेई इज अ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ हरडे और हिरड़ा. Laxative property of myrobalan is due to. Laxative property of myrobalan is due to. Myrobalan. Laxative property of myrobalan is due to. Option A gallic acid, option B chebulic acid, option C anthracene present in the pericarp, and option D दिया है all of them. So laxative property of myrobalan is due to A. Remember दोस्तों, anthracene present in the pericarp. Laxative property of is due to the presence of anthracene in the pericarp. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. Which crude drug is used as a cardiotonic and diuretic? देखो, कौन सा क्रूड ड्रग डायोटिक भी है, कार्डियोटोनिक भी है. कार्डियोटोनिक मतलब क्या है? Which increases the force of contraction of your myocardium. So which drug is used as a cardiotonic as well as diuretic? Option A myrobalan, option B ashoka bark, option C arjuna bark, option D pterocarpus. इसको pterocarpus बोलते हैं, राइट. तो which drug is used as a cardiotonic and diuretic, याद रखना है. उसका आंसर क्या रहेगा आपका, है ना. रिमेंबर टर्मिनालिया अर्जुना, टर्मिनालिया अर्जुना. सो दिस अर्जुना bark और टर्मिनालिया अर्जुना, इट इज यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक एज वेल एज डायूरेटिक. याद रखना है दोस्तों, डायूरेटिक एज वेल एज कार्डियोटोनिक. डायूरेटिक मतलब क्या, डायूरेटिक मतलब क्या, which increases the urine formation. ठीक है, राइट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो. ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया टोमेटोसा, ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया टोमेटोसा इज अल्टरनेट फॉर. ड्राइड बार्क ऑफ टर्मिनेलिया टोमेटोसा इज अल्टरनेट फॉर. ऑप्शन ए myrobalan, ऑप्शन बी अशोका बार्क, ऑप्शन सी अर्जुना बार्क, ऑप्शन डी टेरोकार्पस. तो टर्मिनेलिया टोमेटोसा किसका अल्टरनेट है? ऑप्शन ए myrobalan, ऑप्शन बी अशोका बार्क, ऑप्शन सी अर्जुना बार्क, ऑप्शन डी टेरोकार्पस. टर्मिनेलिया टोमेटोसा इज अल्टरनेट फॉर अर्जुना बार्क. क्वेश्चन नंबर 10 देख लो. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट ऑन द प्लांट आंवला? तो आंवला के प्लांट के ऊपर फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट का क्या इम्पैक्ट है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट ऑन द प्लांट ऑफ आंवला? तो ऑप्शन ए दिया है इंक्रीजेस द टैनिन एंड विटामिन सी कंटेंट, ऑप्शन बी दिया है डिक्रीज द टैनिन एंड विटामिन सी कंटेंट, ऑप्शन सी इट इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, ऑप्शन डी दिया है इट कैन नॉट टॉलरेट फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट.
फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट। तो आंवला जो है ना, आंवला के प्लांट जो है, ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट ऑन द आंवला, राइट? तो ऑप्शन ए इंक्रीजेस द टैनिन एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी डिक्रीज टैनिन एंड विटामिन सी, ऑप्शन सी इट इज अ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, ऑप्शन डी it cannot tolerate frost and drought. So that is the answer. Option D is the answer. ठीक है, you can check the answers over here. Option C, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर था ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर था ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, क्वेश्चन नंबर 10 का डी। चलिए लास्ट स्लाइड है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बनारसी, कांचन, आनंद 2, बलवंत, NA6 are the high yielding varieties of बनारसी, कांचन, आनंद, बलवंत, NA6 are high yielding variety of, मतलब ये क्या है, ये प्लांट के वैरायटीज है। बनारसी, कांचन, आनंद 2, बलवंत, दे आर द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, ऑप्शन ए इंडियन गूसबेरी, ऑप्शन बी अशोका बार्क, ऑप्शन सी सिंकोना बार्क, ऑप्शन डी अर्जुना बार्क। तो इंडियन गूसबेरी मतलब क्या होता है? इंडियन गूसबेरी मतलब आपका आंवला होता है। इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला, इट इज अ सिनोनिम फॉर आंवला। ओके, बनारसी, कांचन, आनंद 2, बलवंत, दे आर द वैरायटीज ऑफ आंवला, सो इट इज इंडियन गूसबेरी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, विच वन इज नोन एज द मोस्ट सैक्रेड ट्री ऑफ हिंदूज। तो हिंदू में सबसे ज्यादा सैक्रेड ट्री कौन सा माना जाता है? विच वन इज नोन एज द मोस्ट सैक्रेड ट्रीज ऑफ हिंदू। ऑप्शन ए दिया है तुलसी, ऑप्शन बी दिया है अशोका बार्क, ऑप्शन सी दिया है सिंकोना, ऑप्शन डी दिया है अर्जुना बार्क। तो सैक्रेड ट्रीज ऑफ हिंदू इज नथिंग बट द अशोका बार्क। अशोका बार्क जो होता है कुछ सैक्रेड ट्री बोलता है ना, अशोकाचं झाड बघा चांगलं असतं। क्वेश्चन नंबर 13, आंवला कंसिस्ट ऑफ ड्राइड एंड फ्रेश फ्रूट ऑफ इंडिका ऑफिसिनालिस फैमिली। तो देखो पूछा है आंवला का फैमिली कौन सा है ना, यार आपने को अपने दोस्त का फैमिली मालूम नहीं तो आंवला का क्या मालूम है? तो आंवला कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्रेश एंड फ्रूट ऑफ इंडिका ऑफिसिनालिस, इंडिका ऑफिसिनालिस फैमिली, इसका है यूफोरबियासी। क्या है फॉर्मूला इसका? यूफोरबियासी, यूफोरबियासी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पावरफुल ऑक्सीटोसिक फिनोलिक ग्लाइकोसाइड P2 इज ए कंपोनेंट ऑफ। तो पावरफुल ऑक्सीटोसिक फिनोलिक ग्लाइकोसाइड, तो देखो दोस्तों ऑक्सीटोसिक मतलब क्या होता है? ऑक्सीटोसिक मतलब विच इंक्रीजेस द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा ऑक्सीटोसिक। एंड टोकोलाइटिक क्या होता है? टोकोलाइटिक विल डिक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिक मतलब विच इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस, टोकोलाइटिक मतलब विच डिक्रीजेस द which relaxes the uterine muscle। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या है, पावरफुल ऑक्सीटोसिक फिनोलिक है ना, पावरफुल ऑक्सीटोसिक फिनोलिक ग्लाइकोसाइड P2 इज ए कंपाउंड फाउंड इन, इट इज फाउंड इन द, ऑप्शन ए इंडिका ऑफिसिनालिस, ऑप्शन बी टेरोकार्पस मार्सुपियम, ऑप्शन सी दिया है अकेशिया कैटेजो, एंड ऑप्शन डी दिया है सराका इंडिका। देखो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीटोसिक ग्लाइकोसाइड फाउंड इन द सराका इंडिका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, which catechu contain chlorophyll and has a fluorescent? Which catechu contain chlorophyll and has a fluorescence in nature? ऑप्शन ए ब्लैक कैटेचू, ऑप्शन बी पेल कैटेचू, ऑप्शन सी ग्रीन कैटेचू, ऑप्शन डी नन ऑफ द वो। तो भाई देखो कैटेचू में दो टाइप होता है, एक होता है ब्लैक कैटेचू, एक होता है पेल कैटेचू। ये ग्रीन कैटेचू आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको लगेगा ग्रीन कैटेचू, ये कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा कोई कैटेचू होता है नहीं। तो ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, तो ऑप्शन 1 2 में है विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड एज फ्लोरोसेंस। तो पेल कैटेचू इज हैविंग chlorophyll as well as it is a fluorescence in nature. You can check the answers over here दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 14 डी, 15 का है ऑप्शन बी। You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. Read 2 or 3 times before exam and qualify 200% guaranteed. Okay? And you can expect more than 70-80 questions
per year in the GPAT exam from single book known as the Fundamentals of GPAT. More than 100 MCQs in the Niper, and this book is also useful for drug inspector and pharmacy exam. And for MCQs practice you can think about these books. तो GPAT का MCQ practice करना है तो ये book आउट होगी, ठीक है, सभी MCQs आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे. You can also join my GPAT Niper DI Pharmacist 2025-26 online course. GPAT Niper DI 2025-26 online course. Here I used to take daily live lectures. आज का लेक्चर हो चुका है मॉर्निंग में. Daily live lectures. Okay, all lectures will be subject wise and chapter wise, giving more focus on the GPAT Niper DI Pharmacist. Okay. Same lecture will be also be available as recorded lectures. Recorded में more than 1500 lectures are available. Study material hard copy is there, and online test series is also there. Okay. In the study material you are going to get these two books. Study material में आपको ये दो books मिलेंगे, and everything is there in a 5000 रुपये only. सिर्फ 5000 में GPAT Niper DI Pharmacist सबका क्लियर हो जाएगा. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर. शिवा विपुल, गुड इवनिंग. शिवा आप तो बहुत ही जल्दी ज्वाइन हो गए, अभी लेक्चर खत्म हो गया. आप तो अभी ज्वाइन कब कर रहे हो आप? लेक्चर खत्म होने के बाद, ठीक है. तो थैंक यू वेरी मच. इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट. ठीक है. और ये जो बैड बॉय क्या बोला है, बैड बॉय, sir why you talk rashly about the other tutorials? So if you are a student then you should not ask such kind of questions, है ना. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. आपका काम है कि स्टूडेंट है, आप स्टडी करना है तो स्टडी कर लो. कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है ये स्टूडेंट का बिजनेस नहीं है, ठीक है. और आपको फिर भी जानना है कि क्यों बोलता हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करो, आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. थैंक यू. वैसे तो वही लोग अलग अलग अकाउंट करके मेरे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, मतलब वही सेंटर वाले लोग जो है ना मेरे अकाउंट में आके कुछ कमेंट कर देते हैं, है ना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है मेरे से कि मैं सच बोलता हूँ. थैंक यू.